الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مکتوب فی الانجیل والتورات ماشاءاللہ ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، سبحان اللہ جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا اور صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ بے شک اور اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستو، آج 17 جون سن 2012 کو 12ویں سالانہ عظمت صحابہ کانفرنس اپنی شان و شوکت سے انعقاد پذیر ہے۔ مخدوم العلماء، ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا قاری تصور الحق مدنی صاحب کی سیرت کانفرنس کے حوالہ سے جو قافلہ حق علماء دیوبند کی نمائندگی کے لیے انڈیا اور پاکستان سے یہاں آتا ہے، تو ان کی محنت و جد و جہد اور کاوش کی برکت پورے یو کے میں اللہ کی توحید، حضور کی سیرت اور صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب العالمین حضرت قاری صاحب کے علم و عمل، رزق و عمر میں بے بہا برکتیں عطا فرمائیں۔ اور میں کوئی تقریر تو نہیں کر سکوں گا کیونکہ اسٹیج پر علم و عمل کے بہرے بے کراں استاذ العلماء، عالم باعمل، ہر دل عزیز شخصیت، مفکر اسلام، میں جن کے لیے 10 منٹ القاب اگر کہتا رہوں تو کم ہے، حضرت مولانا علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب ماشاءاللہ مدذل العالی، اللہ ان کی صحت، علم، عمل، عمر میں بے بہا برکتیں عطا فرمائے اور ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کی زیارت ہی ثواب ہے، چہ جائے کہ کچھ ان کے سمندر سے ہمیں موتی مل جائیں۔ تو میں خود بھی چاہوں گا کہ میں اپنا وقت بھی انہی کی نظر کروں اور ان سے ہم کچھ سنیں، کچھ سیکھیں، کچھ سمجھیں اور اپنے علم و عمل کو جلا بخشیں، رونق بخشیں۔ لیکن حضرت قریشی صاحب کے لمبے چوڑے تعارف اور ان کا حسن ظن نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں 2-3 منٹ کوئی نہ کوئی بات ضرور کر جاؤں، نہیں تو میں نے ذہن میں یہ سوچا ہوا تھا کہ جب میرا اعلان ہوگا تو میں اپنا وقت حضرت کی خدمت میں پیش کر کے بات اجازت چاہوں گا، صرف 2-3 منٹ آپ کے لینا چاہوں گا۔ میں نے جو سیرت کانفرنس میں عنوان چھیڑا تھا اور درمیان میں چھوڑا تھا، آپ کو اکثر کو یاد ہوگا، اور میں نے کہا تھا کہ میں اب صدیق کی جھولی سے بات کو گنبد خضرا کی لوریوں تک پہنچاؤں گا۔ چونکہ یہ عظمت صحابہ کانفرنس ہے اور حضرت نعمانی صاحب
इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इस दौर में जब इस उन्वान और टॉपिक की बड़ी अशद ज़रूरत है और इस मरकज़ को भी कामयाबी से हम किनार करने पर हम उन्हें तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके इस चर्च को ऐसी जामे मस्जिद और ख़त्म नबूवत ख़त्म नबूवत एजुकेशन सेंटर बना दिया कि वाकई पता चलता है कि यहाँ ख़त्म नबूवत के भी चर्चे हैं और ख़त्म नबूवत के पहरेदारों यानी साहबे कराम की इज़्ज़त और अज़मत के भी चर्चे हैं और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये यहाँ होते रहेंगे। तो मैंने सीरत कॉन्फ्रेंस में बात शुरू की थी, कारी तसव्वुरुल हक साहब ने मुझे हुक्म फरमाया था कि मैं हिजरत मुस्तफ़ा पे कुछ अर्ज करूं, तो मैं हिजरत मुस्तफ़ा के उस सफर को सिर्फ 3 मिनट में बड़े मुख्तसर वक्त में बायर मुकम्मल करना चाहूंगा ताकि मैं ज्यादा वक्त और ज्यादा देर हायल न रह सकूं कि मैंने उस सफर को आपके सामने उसका नक्शा खींचा था और हुजूर को और सिद्दीक़ अकबर जब गारे सौर के दहाने पर पहुंचे तो सिद्दीक़ अकबर ने अल्लाह के पैगंबर को कंधों से उतार कर ये नहीं कहा आका मैं लंबी पहाड़ी थी 3 मील की चढ़ाई थी और कंधों पे नबुव्वत का बोझ था, आका थक गया हूं, इजाजत हो तो 2 मिनट आराम कर लूं, सांस ले लूं, पानी पी लूं, रेस्ट कर लूं, कमर सीधी कर लूं, बल्कि ऐसा कोई जुमला नहीं कहा। मैं सिद्दीक की आदाब वफा हया और उनकी अजमत पे कुर्बान जाऊं। सिद्दीक अकबर ने उल्टा ये कहा आका आप थक गए होंगे, मैं अंदर जाके बिस्तर बनाता हूं, आप आके आराम कर लें। तो पैगंबर ने पूछा अबू बकर हम बिस्तर लेके तो नहीं आए थे, बिस्तर कहां से आएगा? तो सिद्दीक ने फिर मुस्कुरा के कहा आका अगर सवारी नहीं थी तो क्या हुआ, अबू बकर के कंधे मोहम्मद की सवारी बन गए थे, अगर बिस्तर नहीं है तो क्या हुआ, आज अबू बकर की झोली मोहम्मद का बिस्तर बन जाए। और फिर सिद्दीक अंदर गए, गार की सफाई की, अपनी पगड़ी को उतारा और नबुव्वत के लिए अपनी पगड़ी को झाड़ू बनाया, सफाई की, गंद बाहर फेंका और सुराखों पे अपने वजूद के कपड़ों के टुकड़े करके बंद किए। एक सुराख बचा तो एड़ी रखी और फिर पैगंबर को बुलाया और बुलाकर अपनी झोली में सुलाया। तवज्जो करना, मैं बड़ी तेजी के साथ आगे एंड पे जाना चाहता हूं। पैगंबर को बुलाया और बुला के अपनी सदाकत वाली झोली में सुलाया और यहाँ पे आके बुखारी ने एक बहुत बड़ा जुमला कहा था कि जब सिद्दीक की झोली थी और पैगंबर का सरे अकदस था तो मंजर ऐसे था जैसे रहल में कुरान होता है। तो उस पैगंबर के उस मंजर में जब सदाकत की झोली में नबुव्वत का सर मुबारक आया तो अजमत सहाबा के दीवानों मतवालों होदारों वफादारों और पैगंबर के यारों को मानने वालों तुमसे एक सवाल करता हूं कि जब झोली सदाकत की थी और सर नबुव्वत का था, बड़ी तवज्जो से जवाब देना, जब झोली सदाकत की थी और सर नबुव्वत का था, ईमान से बताओ दरमियान में कोई फैसला था? सारे बोलो कोई फैसला था? बल्कि नहीं, डायरेक्ट झोली सदाकत की, सर नबुव्वत का, कोई फैसला नहीं, बिला फसल। जब पैगंबर और सिद्दीक बिला फसल जमा हुए तो काले को तकलीफ हो गई, काला तड़पने फुदकने लग गया कि क़यामत तक झगड़ा तो इसी बिला फसल में रहना है और सिद्दीक नबी के साथ बिला फसल क्यों हो गया? तो काला भागा और सदाकत की एड़ी पर डसने लगा और वो डसकर ये तसव्वुर करने लगा कि शायद मैं सदाकत को नबुव्वत से जुदा करके दरमियान में फासला बर्पा कर दूंगा। लेकिन आगे भी सिद्दीक था कि इकबाल की ज़बान में कहता हूं, जिसने कहा होगा कि सो मेरे गनीम न भूल तू कि सितम की शब को ज़बान है, तेरा ज़ुल्म जब बना सही मेरा हौसला भी कमाल है। और फिर जब वो काला डसता रहा अबू बकर हंसता रहा। कुछ जाहिल कहते हैं, तबर्राबाज मलंग धुएंदार कहता है कि अबू बकर रोया था। मैं क्या करता था, अबू बकर न रोया था, न रोने वाला था, न रोने आया था। आखिरी जुमला कह के बात खत्म कर रहा हूं। अबू बकर न रोने वाला था, न रोया था, न रोने आया था, अबू बकर तो रुलाने आया था। आले दिल को मेरी बात टच करेगी कि अबू बकर न रोया था, न रोने वाला था, न रोने आया था, अबू बकर तो रुलाने आया था। उस मलंग को अबू बकर ने ऐसा रुलाया कि उस दिन से लेके आज तक रो रहा है कि अबू बकर बिला फसल क्यों हो गया। तो वो डसता रहा, अबू बकर हंसता रहा और फिर सिद्दीक अकबर ने अपना पांव हटाया। सारे बोलो हटाया। चलो हटाना बड़ा जुमला है, इससे भी अगला जुमला कहता हूं, अबू बकर ने पांव हिलाया। अबू बकर मैं तेरी वफा और अदा पे
करोड़ों जाने कुर्बान कर दूं कि पाँव हटाना तो दूर की बात, अबू बकर ने पाँव हिलाया ही नहीं। क्यों? कि अबू बकर तो तहिया कर चुका था, जान जाती है तो जाए लेकिन मोहम्मद का आराम न जाए। और फिर हुजूर जागे, पूछा अबू बकर क्या हुआ? सिद्दीक ने फिर कहा अल्लाह के नबी कुछ नहीं, वो काले को जरा तकलीफ हो गई थी तो वो दिल का काला, शक्ल का काला, अकल का काला, अकीदे का काला, कपड़ों का काला, दिमाग का काला, जुबान का काला, यहाँ भी काला वहां भी काला। हाँ, उसको जरा तकलीफ हो गई थी कि सिद्दीक नबी के साथ बिला फसल क्यों हो गया, तो उसने आकर मुझे डसना शुरू कर दिया। बर्मिंगम वालों, आखिरी जुमला दे के बात खत्म करने लगा हूँ कि उसने मुझे डसना शुरू कर दिया। हुजूर ने फरमाया अबू बकर फिर तूने क्या किया? अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी मैं तो डटा रहा, वो भाग गया, मैं नहीं भागा, वो छोड़ गया, मैंने नहीं छोड़ा, वो हो गया, मैं नहीं रोया, वो मुझे दस के थक गया, मैं सह के नहीं थका। तो हुजूर ने फरमाया होगा अबू बकर एड़ी इधर ला, हम हैं तो क्या गम है। अबू बकर एड़ी इधर ला, अबू बकर ने एड़ी आगे की, हुजूर ने अबू बकर की एड़ी पर अपना लुआब दहन लगाया और पूछा अबू बकर अब क्या हाल है? सिद्दीक ने कहा अल्लाह के नबी लगता है काले की मेहनत बर्बाद हो गई, अब तो ऐसा लगता है जैसे काले ने डसा ही नहीं। हाँ, तो अब तवज्जो करना, एड़ी पे जब लुआबे दहन लगा, एक मौका था जब शेर खुदा की आंखों पे लुआबे दहन लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तस्वुरात की दुनिया में फैसला खुद ही करते जाओ कि आंखें इंसान की इंतहा है और एड़ी इंसान की इब्तदा है। जो मकाम शेर खुदा की इंतहा को मिला वो मकाम अबू बकर के कदमों की इब्तदा को मिला। यही वजह है कि खिलाफत भी अली को इंतहा में मिली, अबू बकर को इब्तदा में मिली। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।